Hello everyone. So today we are going to start the sexual reproduction, right? So as you all know that we are running in the chapter reproduction in organisms. In this chapter we are not going to study sexual reproduction in a particular organism, right? In this chapter we are dealing with certain terms, certain issues, certain points, certain rules or laws, whatever you want to say, just the primary information. पहली इस तरह की नॉलेज जो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने में आसान बनाती है, ठीक है। ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं अंडर द टॉपिक sexual reproduction, right? We are not going to discuss about any particular organism here. Like in the further chapters we will study sexual reproduction in angiosperms, sexual reproduction in human beings. Here we are going to have certain terms about them. In the previous videos we discussed about the asexual reproduction and their types or their methods in the different organisms. Right now we are going to discuss about the sexual reproduction. Okay, so just remember about the lifespan. If you remember the lifespan, there were three terms. बेटा थोड़ा सा छोटे छोटे terms है और बोर्ड काफी भर गया है, अब इसे zoom out कर लेना, right, to understand that. मुझे कम लिखना पड़ रहा है थोड़ा सा। अगर आपको याद हो लाइफ स्पैन के बारे में, तो इन द लाइफ स्पैन वी हैड डिफरेंट स्टेजेस like juvenile phase, vegetative phase in plants, then after we have reproductive phase, and then senescence or ultimately leads to death. So reproduction जब हम पढ़ते हैं, sexual reproduction जब हम पढ़ते हैं, उससे पहले ऑर्गेनिज्म कौन से फेज में रहते हैं? जुवेनाइल फेज में रहते हैं। कौन से फेज में रहते हैं? जुवेनाइल फेज में इन प्लांट्स एंड वेजिटेटिव फेज इन एनिमल्स। जुवेनाइल फेज इन एनिमल्स एंड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, राइट। तो जुवेनाइल फेज का मतलब क्या है? इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स बिफोर प्यूबर्टी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म कैपेबल जब होना शुरू होता है, उससे पहले के जितने भी स्टेजेस है वो किस में आते हैं? जुवेनाइल फेज में आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, ओके, और एनिमल्स। If you talk about the plants, especially angiosperms, the top category of the plants, we call it vegetative phase. What is that vegetative phase? Before flowering, flowering होने से पहले एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन इवेंट है, दैट इज फ्लावरिंग, फ्लावर फॉर्मेशन। फ्लावर फॉर्मेशन से पहले का जितना भी स्टेज है, दैट विल कम अंडर वेजिटेटिव फेज, राइट। व्हेन ऑर्गेनिजम्स रीच टू द रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। उनमें से एक चेंज आता है साइक्लिक चेंजेस आफ्टर द प्यूबर्टी और द इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज, दैट वी कॉल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल. Remember, menstrual cycle and estrous cycle, both are the cyclical changes. Then what is the difference? What is the difference, beta? This occurs in primates. This occurs in primates and this occurs in non-primates. Non-primates. बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, समझने की कोशिश करना। प्राइमेट्स कौन होते हैं? मंकी, एप्स, राइट, ह्यूमन बीइंग्स, इनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। नॉन प्राइमेट्स कौन होते हैं? शीप, cow, rat, rabbit, correct? So they show the cyclical changes. We will discuss later on in the further chapters about those. So here we are just briefing about the issues that we have to discuss. Then after, one more thing, I tell you something different from your book, that is breeders. Okay, breeders can be of two types. But breeders can be of two types. So there are two types of breeders जो reproduce करने का उनका तरीका है। मतलब annual breeders and seasonal breeders. Annual breeders and seasonal breeders, ये क्या होते हैं? Annual breeders वो होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने की, उनकी बॉडी उनको अलाउ करती है। अलाउ करने का मतलब है सिर्फ सेक्सुअल एक्ट नहीं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, नया ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द बॉडी इज रेडी इन ऑल द टर्म्स, राइट। So they are called as annual breeders like human beings. And if you talk about the seasonal breeders like dogs, they have a particular time through the year or during the year in which they can breed, can produce the new ones. So this is another term to learn
that is annual breeders and seasonal breeders. Now we come to the sexual reproduction. बेटे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो उस स्टडी को आसान बनाने के लिए, उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए वी क्लासिफाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और द स्टडी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर 3 हेडिंग्स: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी fusion of male and female gametes. Fertilization is the most important event in the sexual reproduction, that is the fusion of male and female gametes. So from wherever they are coming, either are coming from the 2 organisms or 2 parents, or coming from the single parent, okay, whether it is plant, animal, fungi, whatever it can be. Pre-fertilization events which are occurring before fertilization. Post fertilization, the events which are occurring after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले जितने भी इवेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और उससे पहले जितने भी इवेंट होंगे उनको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट? सो हियर यू कैन सी आई हैव मेड अ टेबल वेयर वी डिस्कस अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ इवेंट्स एंड द डिफरेंट टर्म्स दैट वी यूज अंडर दिस टॉपिक. सो प्री फर्टिलाइजेशन, fertilization and fertilization, we talk about all one by one. First you have a look on the fertilization. You all know, you have been studying this fertilization term right from the smaller classes. What is fertilization? Fusion of male and female gamete to give rise zygote under sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, जरूरी नहीं है वो ओवम और स्पर्म ही नाम से बोला जाए, लेकिन अगर मेल और फीमेल गैमेट हैं या डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं अंडर द लोअर ऑर्गेनिजम्स वी टॉक अबाउट, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसको हम डिफरेंट स्ट्रेन्स के नाम से जानते हैं, राइट? अगर वो फ्यूज करते हैं तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है. अगर फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो गैमेट बनेंगे कहां भाई? गैमेट आएंगे कहां से भाई? सो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर द प्री फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले one thing, that is gametogenesis. Genesis, formation किसका? gametes का, right? And then after gamete transfer, after the formation of gametes, gamete transfer. These are the 2 important events in the pre-fertilization topic. So you can take the picture of it and you can zoom it. So now we talk about the gametogenesis, formation of gametes. So remember very important fact. We will discuss it after we finish these terms. Then we will come to the point. Gametes are always haploid. Gametes are always haploid. That means they are always having the half number of chromosome in the complete life cycle of the organism. They are having half number of chromosome in the complete life cycle of the organism. Same time, just see, zygote is always diploid. Zygote is always diploid. It has double number, it has half number. It is true for all, whether the organism is haploid or diploid. Organism चाहे half number of chromosome रखने वाला हो या वो double number of chromosome रखने वाला हो. क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा है, हम इसको और डिस्क्राइब आपको कर देंगे इसका मतलब क्या है. बट अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए that gametes are always haploid and zygote is always diploid. How does it happen? How does it occur? इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे पॉसिबल होता है. ठीक है, now leave it for a while. Now we come again to the gametogenesis. In gametogenesis we are having number of terms. इन्हें समझना है. देखिए again, as I generally teach to students by breaking the words, now here we are going to start the same process like spermatogenesis. Genesis, formation of sperms, oogenesis, oo word आता है egg के लिए, egg formation. होमोगैमेट्स, होमो का मतलब होता है बेटा सेम, गैमेट्स जो सेम टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, और वी कॉल देम आइसो. आप पढ़ चुके हैं इसको केमिस्ट्री में, आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं ना. आइसो का मतलब भी क्या होता है? सेम. तो होमोगैमेट्स इफ द गैमेट्स आर ऑफ द सिमिलर टाइप, अगर वो सेम दिख रहे हैं, उनका मॉर्फोलॉजी सेम है, तो यू विल कॉल देम होमोगैमेट्स, राइट? और इफ दे आर डिफरेंट यू विल कॉल देम हेटेरोगैमेट्स. लाइक इन ह्यूमन बीइंग्स यू सी
दिस इज नॉन मोटाइल, चलता नहीं है, दिस इज मोटाइल, ये चलता है। इसका मतलब इन दोनों का फिजियोलॉजिकल सिस्टम भी डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकली भी ये डिफरेंट है, राइट। यू कैन सी द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू, हेंस दे आर हेटेरोगेमेट्स। सो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हेटेरोगेमेटिक सिचुएशन है। नाउ वी कम टू द अनदर टर्म होमो, अगेन होमो। होमो का मतलब क्या निकाला थोड़ी देर पहले, सेम होमोथैलिक। थैलिस वर्ड का यूज किया जाता है लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जहां पर बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, राइट। सो होमोथैलिक या थैलस वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों ही एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उनको आप बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। यू मे कॉल देम बाइसेक्सुअल इन सिंपल मीनिंग, और यू कैन कॉल देम मोनोशियस। मोनोशियस, मोनो का मतलब होता है एक में ही, इशियस टू बियर, टू बियर रखना, इशियस टू बियर, इशियस का मतलब होता है टू बियर रखना किसी चीज को, किसको, सेक्स को, कितनी बॉडीज में, एक ही बॉडी में, राइट। सो वी कॉल देम मोनोशियस। जस्ट कॉन्ट्रैरी टू इट, दैट इज व्हाट हेटेरोथैलिक, ऐसा थैलस जिसमें डिफरेंट गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ईदर मेल और फीमेल। यू मे कॉल देम डायोशियस एज वेल, और यू मे कॉल देम यूनिसेक्सुअल। क्या बोल सकते हैं आप उसको, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। इस टर्म को जिसको बाइसेक्सुअल बोल रहे हैं, एक और टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। अर्थवर्म इज एन एग्जांपल फॉर दैट, हर्मेफ्रोडाइट, जिसके अंदर दोनों ही सेक्सेस अवेलेबल होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द अनदर टर्म, दैट इज staminate flower and pistillate flower, right? What is the staminate flower? Having only male part, having only male part, that is what, stamen. And pistillate flower, the flower which is having only pistil in that, okay. So can you guess what term will you use for them, unisexual or bisexual? Unisexual. The term that we are going to use for the staminate flower is unisexual flowers having stamens only, pistillate, unisexual flowers having pistil only, okay. So these were the terms that we discussed. Then after we come on to the gamete transfer. What is gamete transfer? Gamete transfer is the transfer of gametes from the male body to the female body. बेटा इस gamete transfer के बारे में हम अगले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी बात हम करेंगे. Like you all know about the plants where you study pollination. I'm sure you have been studying this term from in your previous classes, that we call pollination. Very simple, pollination, right? So what happens in pollination? I draw a diagram here to make you clear. This is the female reproductive part of the flower. This is the male reproductive part of the flower, and inside this you find the pollen grain which contain the male gamete. We will discuss later on about that. So transfer of this pollen grain to the stigma from anywhere. Transfer of this pollen grain containing the male gamete from stamen to stigma, from anther to stigma, is called as pollination. Now this is gamete transfer here in the angiosperms, which can be done by air, water, animals, birds, mollusks, कुछ भी हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अगले चैप्टर का हिस्सा है. इतना डिस्कशन की कोई आवश्यकता भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में बात डाल लीजिए कि गैमेट फॉर्मेशन होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर. पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा. गैमेट ट्रांसफर का तरीका कुछ भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दे ऑप्ट फॉर दैट वन. गॉट इट? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ओवर होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन हो चुका है, गैमेट का ट्रांसफर हो चुका है. नाउ वी मूव ऑन टू द फर्टिलाइजेशन. हियर इज द बेसिक इवेंट, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes. Fusion of male and female gametes is called as fertilization, or you may call them syngamy. हालांकि दोनों में डिफरेंस है, a thin layer of difference is there, right? So fertilization और syngamy के अंदर fusion of male and female gametes होगा. What type of fertilization we may find in nature? Fertilization के दो तरीके हो सकते हैं. Either it can be external or it can be internal. If the fertilization is occurring, नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो खैर इसमें, if the fertilization is occurring outside the body,
that is called as external fertilization. And if the fertilization is occurring inside the body, that is called as internal fertilization. External, exit, बाहर अगर हो रहा है, that is called as external fertilization. Okay, like frog के अंदर fertilization external होता है. मेल अपने स्पर्म्स को और फीमेल अपने एग्स को डिस्चार्ज करते हैं वाटर के अंदर, वो वहां फ्यूज करते हैं, randomly फ्यूज करते हैं, right? And then after we talk about internal, human being is the best example for that. Almost mammals go with the same system. They perform internal fertilization. बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है. यहां पर एक नोटिस करने वाली बात क्या है बेटा? नोटिस करने वाली बात यहां पर ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि इनमें से कौन से फर्टिलाइजेशन में श्योरिटी बहुत ज्यादा है. आई एम श्योर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर इसका इंटरनल आने वाला है, ठीक है. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक क्या चीज नोटिस करने वाली है? जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनको गेमेट्स का नंबर बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है क्योंकि श्योरिटी के चांसेस कम हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिनके अंदर होता है उनमें नंबर थोड़ा सा लेस होता है, ठीक है. ज्यादा वो भी बनाते हैं लेकिन इनके कंपैरिजन में वो लेस बनाते हैं, ठीक है. जब गेमेट का ट्रांसफर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, लेकिन ये बात निश्चित है कि इन दोनों के रिजल्ट में फॉर्मेशन किसका होना है? जाइगोट का होना है, ठीक है. राइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन वी आर गोइंग टू हैव द स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट. जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड. जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड. आप इस बात को समझ सकते हैं. जो जाइगोट होता है दैट इज द फर्स्ट वाइटल लिंक, पहला जिंदा, पहला जीवित, पहला लिविंग, द फर्स्ट लिविंग, फर्स्ट वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. पहली चीज जो जिंदा बनती है, वो जो वाइटल लिंक जिसको कहा जाता है वो जाइगोट है. ये बोर्ड के अंदर एक नंबर में ये सवाल आ जाता है, ध्यान रखें आप. ऑल्सो जाइगोट एंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. अगली जनरेशन आने वाली है इस बात को एंश्योर करता है कौन? जाइगोट. क्योंकि जाइगोट बनने के बाद वी आर ऑलमोस्ट श्योर दैट द जनरेशन इज गोइंग टू कम, राइट. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उसके बाद जाइगोट के बाद ऑर्गेनिज्म लीड करेगा किसके लिए? पूरा इंडिविजुअल बनाने के लिए, राइट. So after zygote, the event that occurs is called embryogenesis. Embryogenesis, again see the breaking of word, embryogenesis. Genesis, formation, generation, formation, generation of what? Embryo. Embryo formation is called as embryogenesis, right. Here you see when zygote turns into embryo, two major events occur. Two major events. Obviously zygote is a single cell. Zygote is a single cell which is going to convert into the multicellular structure called embryo and thereafter the complete individual, right. तो zygote जब embryo में टर्न होगा उसमें दो स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट इज द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन will lead to the increase in the number of cells, increase in the number of cells. Then after cell differentiation, the cells which have been formed, they will turn into the different types of tissues, different types of cells which are going to form different types of organs, right. That is called as cell differentiation. Don't assume for the human beings only. This happens in all the organisms if they are having the embryo, right. Then after we talk about certain issues of which are coming under the sexual reproduction, okay, like oviparous, ova, that means egg, right. The organism which lay egg are coming under oviparous. Viviparous which are giving birth, जो जन्म देते हैं बच्चे को, उन्हें कहते हैं विविपेरस. एग्जांपल देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, आप सब जानते हैं. ओवो विविपेरस विच कैन परफॉर्म बोथ, दोनों चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं. कि ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग टर्म है. इसमें स्नेक शामिल होते हैं, वो डायरेक्ट एग भी ले कर देते हैं और अपने एग्स को बॉडी के अंदर हैच भी कर लेते हैं. तो जब वो आउट करते हैं तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म आउट कर देते हैं विच लुक्स लाइक गिविंग बर्थ, ठीक है. तो दोनों चीजें उसमें शामिल होती हैं. दैट वी कॉल ओवोविविपेरस, राइट. स्नेक्स आर, रेप्टाइल्स आर द एग्जांपल फॉर दैट. Next term we talk about parthenogenesis. Parthenogenesis. Again you see genesis means formation. Genesis means formation. Partheno word means virgin, unmarried, unfertilized. बिना fertilization के अगर पूरा individual form हो जाए female gamete से, remember this is a very tricky term. Okay, लोग अक्सर भूल जाते हैं इस बात को समझने में कि parthenogenesis में रोल किसका होता है. मेल गैमेट कभी भी न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं होता है. सो रिमेंबर, इफ द फीमेल गैमेट टर्न्स इनटू द न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस. इफ
there is a fruit formation, carpo, carpi, fruit. If there is fruit formation without fertilization, that is called as parthenocarpy. Fruit formation without fertilization, parthenocarpy. And if there is a formation of seed, that is called as apomixis. If a complete individual is being formed, देखिए ये तीनों चीजें किसके हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट? इफ पूरा इंडिविजुअल इज बीइंग फॉर्म्ड, पार्थेनोजेनेसिस. इफ फ्रूट इज बीइंग फॉर्म्ड, पार्थेनोकार्पी. एंड इफ ओनली सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज apomixis. So dear children, these were all terms related to the sexual reproduction or the events of the sexual reproduction, where we study about the pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events, right? After studying or learning these terms, you become comfortable. आप बहुत आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं अगले दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है? तो बेटा इन टर्म्स को आपको याद करना है. इसके बाद एक छोटी सी चीज और रह जाती है जो मैंने आपसे जिक्र किया था. That was about the gametes and zygote and their ploidy. Okay, I told you that gametes are always haploid and zygote is always diploid. Gametes are always haploid and zygote is always diploid. Remember that, ठीक है? इस बात को आप याद रखेंगे. देखिए बेटा क्या होता है, दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली. तीन भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतनी बात करूंगा. एक वो होते हैं जिनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है, लाइक फंजाई. इन सम ऑफ द फंजाई यू विल फाइंड. एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी मेन बॉडी डिप्लॉइड होती है. अब हैप्लॉइड डिप्लॉइड का डिसीजन कैसे करें? ऐसे करें. ये लाइन बताइए छोटी है बड़ी है? कुछ नहीं कह सकते आप, लेकिन अब बताइए, अब ये लाइन छोटी है, अब ये लाइन बड़ी है. इससे कंपेयर किया तो बड़ी है, इससे कंपेयर किया तो छोटी है. इसका मतलब है कंपैरेटिव टर्म में, ध्यान रखिएगा, है ना बेटा? ये जाइगोट से कंपेयर करेंगे हम इसको कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, राइट? अब देखिए, अगर मेन बॉडी एन है, हैप्लॉइड है, तो उस मेन बॉडी के अंदर गैमेट्स बनाने के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए यहां पर होगा माइटोसिस. और माइटोसिस में आप जानते हैं क्रोमोसोम का नंबर रहेगा सेम. तो यहां पर मेल गैमेट भी एन का आएगा और फीमेल गैमेट भी एन का ही आएगा. दोनों फ्यूज करेंगे, यहां पर जाइगोट बनेगा. बताइए जाइगोट कैसा आता है? 2n, डिप्लॉइड नंबर का आता है. और इस जाइगोट में अब मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर हाफ नंबर का क्रोमोसोम अगेन हमको ऑब्टेन हो जाएगा, एंड द मेन बॉडी इज अगेन विद द हैप्लॉइड नंबर. बट हियर व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, गैमेट इज हैप्लॉइड एंड जाइगोट इज डिप्लॉइड. Now we talk about the main body, where the main body is diploid. Okay, अब देखिए, आपने यहाँ मेन बॉडी को हैप्लॉइड क्यों कहा? क्योंकि जाइगोट में जो नंबर है ये उसका हाफ है, इसलिए आप इसको हैप्लॉइड बॉडी बोलेंगे. Now we talk about the main body where the organism is diploid, double number. Here, when gametes are formed, there will be meiosis. So in the gametes, the chromosome number will be half. After meiosis, the chromosome number will be half. Again, you can see gametes are always haploid. They are going to fuse. They will form zygote. Here the zygote is of the 2n number. Again, you have got it. अब देखिए यहाँ पर डबल नंबर है, इसमें भी डबल नंबर है. इस वजह से हम इस बॉडी को बोलेंगे डिप्लॉइड बॉडी. Got it? After 2n, this will go to mitosis, and the individual will also be of the 2n number, and you are getting again the same chromosome number as it was in the parent. Remember? So you have to see that meiosis is the important part of sexual reproduction. Number one, if the main body is haploid, there will be mitosis to form gametes. If the main body is diploid, there will be meiosis to form gametes. But this is sure that gametes are going to be haploid at any cost, at any level. When they fuse, they give rise zygote, which is diploid in number surely. ठीक है? So this was all about the sexual reproduction. You learn it, remember it, and touch your book. Try to read your book. Book बहुत अच्छा होता है पढ़ने के लिए. Thank you.